السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 80 ہے، جس میں آیات نمبر 195 سے 200 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور الحمدللہ آج کے درس میں سورہ آل عمران مکمل ہو کر اب آگے سورہ نساء کا درس آپ کے سامنے آئے گا۔ پچھلا آخری جو درس ہمارا ہوا تھا اس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا تھا کہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتا ہوا سنا کہ وہ ہمیں ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، تو ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ پھر اس کے بعد کہا اے ہمارے رب جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے رسولوں کی زبانی اسے پورا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل مت کر کیونکہ تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو اب جب یہ انہوں نے دعائیں مانگی تو اللہ رب العالمین اس کا رسپانس کیا دے رہا ہے، آج کی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے آیتوں کا ترجمہ، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ان دعاؤں کا جواب دیا کہ اللہ رب العالمین یعنی جو تمہارا رب ہے اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی مرد اور عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، کیونکہ تم بعض سے ہو، یعنی تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، گھروں سے نکالے گئے، اللہ کے راستے میں تکلیف دیے گئے۔ یہاں پر خاص طور پر ان صحابہ کا ذکر ہے جنہیں مکہ سے نکالا گیا تھا، پر قیامت تک جو بھی ہجرت کرتے ہیں، دین کے لیے جنہیں تکلیفیں آتی ہیں، دین کے لیے جنہیں پریشان کیا جاتا ہے، ان سب کو یہ فضیلتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ پر اسپیشلی یہاں پر مکہ کے ان صحابہ کا ذکر ہے جنہیں ہم مہاجر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی اور اپنے گھر سے نکالے گئے، اللہ کے راستے میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، اللہ کے راستے میں انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کے راستے میں وہ مارے بھی گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا،
اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین ثواب اور بدلہ دینے والا ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں قتال کریں, قتال کیے جائیں, انہیں مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی ہجرت, ان کی تکلیف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یہ انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, یہ بدلہ اللہ کی طرف سے ہے, اور یقیناً اللہ رب العالمین بہترین بدلے دینے والا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے کہ ان کافروں کا شہروں میں گشت کرنا, کاروبار کرنا, مضبوطی پہ دکھنا تمہیں تکلیف اور دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی اس کی وجہ سے تم رشک نہ کرنے لگ جاؤ کہ ارے کفر پر ہو کر بھی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا کاروبار ہے. ایسا تمہیں نہیں ہونا چاہیے. متاع قلیل, یہ تھوڑا سا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا میں اگر اللہ انہیں مال دے دے, دولت دے دے, شہرت دے دے, عزت دے دے, اس سے مومن کو کبھی بھی ٹینشن فکر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ دنیا کا سامان ہے. کافر کو اس کے کفر کا جو بھی معاملہ ہے صرف دنیا اس کی نیکیوں کا بدلہ ہے, آخرت میں اس کے لیے جہنم رہے گا. لیکن الذین اتقوا, اب اللہ تعالیٰ ان کے اپوزٹ پارٹی کا ذکر کر رہا ہے, ایمان والوں کا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا, یعنی اپنے رب سے ڈرے, ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. یعنی ایک طرف ہے دنیا, ایک طرف ہے آخرت. اب اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں اگر کفار کے پاس زیادہ ہے تو ٹینشن مت کرو, اگر وہ اللہ کو نہ مانے, کفر کرے تو اللہ دنیا میں دے گا. پر ایمان والا جو ہے, اللہ پر تقوی اختیار کرنے والا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جس جنت کو تیار کیا ہے وہ بہت بہتر ہے, اس کی نعمتیں بہتر ہے, کبھی فنا نہ ہوگی, کبھی ختم نہ ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ. اہل کتاب میں ایسا نہیں کہ سب کے سب برے ہیں. اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, جو تم پر نازل کیا گیا, جو ان پر نازل کیا گیا. یعنی اللہ کے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں, آپ سے پہلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خاشعین للہ, اللہ سے ڈرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیتوں کو پیسے کے بدلے نہیں بیچتے ہیں, تھوڑی تھوڑی قیمتوں کے بدلے سودے نہیں کرتے ہیں, جو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ سامنے والے کو دیکھ کر اپنا دین بدل دیا کرتے تھے, کتاب کی تعلیمات بدل دیا کرتے تھے. امیر کوئی عمل کرے تو سزا ہلکی کر دیں, غریب کرے تو سزا زیادہ کر دیں, یعنی پیسے کے بدلے دین کو بیچا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں, ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, اپنے جو پہلے نبی گزرے ان پر ایمان رکھتے ہیں, اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب, یقیناً اللہ تعالیٰ جلدی فیصلے کرنے والا ہے. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں قتال کرنے والوں کو جمنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر کرو, جم کر رہو, ربط سے رہو, یعنی مضبوطی سے مل کر رہو. واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ صبر رکھو, مل کر مضبوطی سے ایک دوسرے کو تھام کر رکھو. جنگ کا موقع آئے تو اپنے قدم کو جماؤ. اسبرو مطلب اپنی ذات کے لیے صبر کرو. صابرو مطلب جماعت پوری, یعنی ایک ساتھ صبر کرو. اللہ کے راستے میں اگر قتال کی بات آ جائے سب صبر کرو. اور رابطو کا مطلب مل کر رہو, باؤنڈنگ مضبوط بنا کر رکھو, ایک دوسرے کو ایک طاقت بنا کر رکھو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یقیناً اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے کامیاب ہونے والے ہیں. تو آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پہلے عمل کا تذکرہ کیا, پھر دنیا میں اگر کسی کے پاس نافرمانی اور حرام کے بعد کفر اور شرک کے بعد بھی دولت ہے اس کا انجام بتایا, پھر ایمان والوں کا انجام بتایا. پھر ایمان والوں کا انجام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں مومنوں کو صبر کرنا پڑے گا, ملنا پڑے گا, جمنا پڑے گا, قدم کو جمانا پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف اختیار کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس کے بعد ویسے تو بہت کم الفاظ ہیں جو آج ریپیٹڈ ہے یا نئے الفاظ ہیں, زیادہ تر تو ریپیٹ الفاظ ہیں, پھر بھی کچھ الفاظ ہیں جو آج نئے تھے. فاستجاب لهم, responded to them, اللہ نے انہیں جواب دیا, رسپانس کیا, جواب دیا. لا اضیع, to be lost, برباد نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ تم عمل کرو اللہ برباد کر دے گا, عمل کا برابر تمہیں بدلہ دیا جائے گا. لا اضیع, برباد نہیں کیا جائے گا.
उखरिजू इमिग्रेटेड, जो निकाल दिए गए, मुहाजिर जिन्हें कहते हैं ना, हमारे माइग्रेट्स कहते हैं मुहाजिर, जिन्हें निकाल दिया गया। ऊजू हार्म्ड, तकलीफ दी गई, घर से भी निकाला गया, जिस्म पर तकलीफ, माल पर तकलीफ भी दी गई। ला यगुर्रन्नका, बी नॉट डिसीव्ड, यानी उनका ये सब करना, उनका पैसे में रहना तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हें धोखे में ना डाले, यानी उनके अमल को देखकर तुम्हें धोखा नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनके पास इतनी दौलत और इतना माल क्यों है, इस सब से धोखे में मोमिन को नहीं आना चाहिए। तकल्लुब, मूवमेंट, भटकना, घूमना, शहरों में तुम्हारे सामने हरकतें करना, पैसा कमा रहे हैं, माल कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इनका ये आना जाना, मूवमेंट करना। राबितु, रिमेन स्टैंड, जमकर रहो, जमकर मजबूत रहो, यानी ऐसा नहीं कि दुश्मन जब आए तो सब छोड़ छाड़ कर भाग जाओ, और राबितु, मिलकर मजबूती से जमे हुए रहो, जमकर रहो, एक साथ रहो, ताकत और कुव्वत के साथ रहो। अब हमारा जो बुनियादी नुक्ता होता है तदब्बुर, आज की आयतों पर हमने क्या गौर किया। नंबर 1, अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, उसे कबूल करता है, इसलिए सिर्फ अल्लाह को पुकारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा मोमिन की कोई दुआ ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस होता क्या है, इससे पहले मैं दुआ के बारे में 2-2, 3-3 मरतबा क्लास ले चुका हूँ कि दुआ का मतलब ये नहीं होता है कि आप मांगो और अल्लाह फ़ौरन वही दे दे। कभी अल्लाह ताला से जो मांगते हो वो देता है, कभी उसके बदले में मुसीबतें हटा देता है, कभी उसका बदला आखिरत में देगा। कई तरीके होते हैं, पर अल्लाह ताला दुआ सुनता है, हर दुआ सुनता है, हर बात सुनता है, हर पुकार सुनता है। तो अल्लाह ताला को पुकारते रहो, ये मत सोचो कि अल्लाह ताला नहीं सुन रहा है, अल्लाह ताला नहीं जानता है, अल्लाह ताला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दुआ का सुनता है। अल्लाह ताला कहता है फस्तजाब लहुम, अल्लाह ने उन्हें रिस्पॉन्स दिया, जवाब दिया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दुआ को, हर सदा को, हर आवाज़ को, हमारी हर पुकार को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है। नेक्स्ट, अमल करो, अल्लाह कभी अमल ज़ाया नहीं करता। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग नेकी करते हैं, हमको लगता है फ़ायदा क्या हुआ इसका। कई लोग बोलते हैं ना, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, इसका क्या फ़ायदा। हर चीज़ में फ़ायदा नहीं देखा जाता है, फ़ायदा अल्लाह के पास मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा वहीं पर आपको दिख जाए, आप फ़ायदा करेंगे तो फ़ायदा ही ख़त्म हो जाएगा। तो कई लोगों को क्या लगता है, हर चीज़ का फ़ायदा नज़र आना चाहिए। अल्लाह कह रहा है मैं अमल ज़ाया नहीं करता हूँ। तुम अगर नेकी कर रहे हो ना, गरीब की मदद कर रहे हो, मिस्किन की मदद कर रहे हो, बेवा की मदद कर रहे हो, किसी को खाना खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, मदरसा बना रहे हो, कुछ भी नेक कर रहे हो, अमल ज़ाया नहीं होगा कभी तुम्हारा। ये मत सोचो कि लोगों को तो पता ही नहीं चला, मैंने इतना किया, लोगों को तो मालूमात ही नहीं हुई, फेसबुक पर नहीं दिखा, व्हाट्सएप पर नहीं दिखा, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरी शोहरत नहीं हुई। अल्लाह कहता है अमल कभी ज़ाया नहीं होता। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी नेक अमल जब आप करते हैं, अल्लाह ताला आपके नेक अमल को ज़ाया नहीं करता है। इस बात का बंदा मोमिन को यकीन होना चाहिए। नेक्स्ट, अमल में मर्द और औरत अल्लाह की नज़र में बराबर है। लोग हमारे यहाँ आजकल बड़ा वावेला उठा रखा है ना यूरोप वालों ने कि मुस्लिम औरतों को आज़ादी दिलाएंगे, मुस्लिम औरतों को बराबरी का अधिकार दिलाएंगे। कई अगर आप धर्मों को पढ़ें, उनके धर्मों की तालीमात को पढ़ें, तब आपको पता चलेगा औरतों को क्या अधिकार दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़हब इस्लाम है जो कहता है कि अमल करने वाला चाहे मर्द चाहे औरत, दोनों बराबर अज्र दिया जाएगा। मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत, मर्द औरत अल्लाह की नज़र में अमल के एतबार से बराबर हैं। अल्लाह ताला अमल का सवाब, अमल का बदला, नेकियों का बदला बराबर दोनों को अता करता है। ऐसा नहीं कि मर्द को सवाब दे, औरत को सवाब ना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बराबर अज्र दोनों को अता करता है। नेक्स्ट, अल्लाह के रास्ते में हिजरत और दीन के लिए तकलीफ उठाने का बदला जन्नत है। आप दीन पर अमल कर रहे हैं, शरीयत को आपने कबूल किया है, उस वजह से लोग आपके दुश्मन हो गए, शहर वाले दुश्मन हो गए, शहर छोड़ने की नौबत आ जाए, मारा जाए, पीटा जाए, माल छीन लिया जाए, गालियां दी जाए। अगर आप दीन के रास्ते में हिजरत करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, जान माल पर तकलीफ आती है, ये सारी तकलीफों का बदला जन्नत है। जैसे आज हम लोग दावत का काम जब करते हैं, तौहीद की किसी को दावत देने जाते हैं, लोग बोलते हैं नहीं तो आप ही हैं, तो एजेंट हैं अंग्रेज़ों के, ऐसे हैं वैसे हैं, को काफिर हैं, तरह तरह के फतवे देते हैं। कई मरतबा रिश्ते तोड़वा देते हैं, आपकी बच्चियों को घर भेज देते हैं, आपका कोई रिश्ता वो तोड़वा देते हैं। जितनी हरकतें चाहे करें, कारोबार चाहे बर्बाद कर दें, इन सब का बदला जन्नत। इतना बड़ा अज्र है।
आज होता है ना, एक इंसान बेपर्दा घूमता था, कोई पर्दे से उसे मतलब नहीं था, अब पर्दा करने लग जाए लोगों का इतराज शुरू हो जाता है, बड़े आप पर्देदार बन गए, बड़ा रुपट्टा ओढ़ने लगे, बड़ा ये करने लगे, वो करने लगे। कल तक तो आप बर्थडे मनाते थे, कल तक आप एनिवर्सरीज मनाते थे, आज मना कर रहे हैं। तकलीफ आएगी, तकलीफ यकीनन आएगी, पर उन रास्तों पर अगर आपको तकलीफ दी जाए तो इसका बदला रब्बुल आलमीन कहता है जन्नत है, जन्नत बदला है। अगर आपको तकलीफ दीन की वजह से दी जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में आपको जन्नत अता करेगा। नेक्स्ट, अल्लाह के रास्ते में जितनी तकलीफें आती हैं उससे हमारे गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रास्ते में हैं आप, दीन का काम कर रहे हैं आप, किसी को दीन बता रहे हैं आप, अब अगर उसमें आपको कोई एक गाली देना, आपका गुनाह माफ हो रहा है, हाथ उठाएगा गुनाह माफ हो रहा है, कारोबार बर्बाद करेगा गुनाह माफ हो रहे हैं, रिश्ते तोड़वाएगा गुनाह माफ हो रहे हैं। अल्लाह के रास्ते में चाहे जितनी तकलीफें आ जाएं, हर तकलीफ के बदले में आपके गुनाहों को माफ किया जाता है। जैसे अल्लाह ताला कह रहा है ना कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लउकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, जरूर व जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गलतियों को माफ कर देगा। यानी अल्लाह के रास्ते में बंदे को जितनी ज्यादा तकलीफें आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उतने ज्यादा उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। यानी ये तकालीफ उसके लिए कफ़ारा बन जाती हैं। सोचो, आपको अगर दीन के लिए मारा जा रहा है, गाली दी जा रही है, जुमले कसे जा रहे हैं, उल्टे सीधी बातें बोली जा रही है, आपके घर वालों को सताया जा रहा है, ये सब आपके लिए कफ़ारा है, या आपके गुनाहों का कफ़ारा है, या आपकी खताओं का कफ़ारा है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपकी माफ़ी का इंशाअल्लाह जरिया है। नेक्स्ट, काफिरों का ताकतवर होना मोमिन के लिए तकलीफ नहीं बल्कि खुशी का जरिया होना चाहिए। काफिरों का ताकतवर होना, एक इंसान इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहा है, अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहा है, अल्लाह के खिलाफ कोशिशें कर रहा है, उसके दीन के खिलाफ कोशिशें कर रहा है, ईमान वालों को तकलीफ दे रहा है, उसके बाद भी ताकतवर है, कुव्वत बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, उसके पास सारी चीजें बढ़ रही है। इससे बंदा मोमिन को कभी तकलीफ महसूस नहीं करना चाहिए। ये तो अल्लाह का उसके ऊपर इनाम है कि उसके सामने अल्लाह उसे ऐसी कौम दिखा रहा है जिन्हें अल्लाह ताला बर्बाद करने वाला है। ये इसकी ताकत, कुव्वत, शोहरत, इज्जत, पैसा सब इसकी जिंदगी तक है। आपको जो मिलेगा वो हमेशा बाकी रहेगा, इसको जो है वो खत्म होने वाला है। या तो मरकर जला दिया जाना है या मरकर दफना दिया जाना है, सब खत्म हो जाना है। जाएगा किसके साथ? आपके साथ। ऐसी नेमतों में आप रहेंगे जो नेमतें फना ना होंगी, वहां मौत ना आएगी, वहां खात्मा ना होगा। तो काफिरों का, अल्लाह के दुश्मनों का, दीन के दुश्मनों का ताकतवर होने से मोमिन को कभी तकलीफ महसूस नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जो देने वाला है वो बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो बंदा मोमिन को असल में आखिरत की फिक्र करना चाहिए। नेक्स्ट, दुनिया में नेमतों की ज्यादती कभी खुशी में मोमिन को ना डाले। हो सकता है वो अल्लाह का इम्तिहान हो। दुनिया में खूब नेमतें आपके पास आ रही है, पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कारोबार चल रहा है, बहुत ज़्यादा अगर नेमतें आए ना तो मुसलमान को खुश होने की बजाय सोचना चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला मेरा इम्तिहान तो नहीं ले रहा। क्योंकि अल्लाह के इम्तिहान दो तरीके से होते हैं, कभी लेकर और कभी देकर। कभी ज्यादा माल देकर भी अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। कई जगह कुरान में अल्लाह ने बताया है कि अल्लाह ताला माल के जरिए भी इम्तिहान लेता है। जितना ज्यादा देता है, अगर उसके बाद इंसान सरकश हो जाए, गुनहगार हो जाए, खताकार हो जाए, अल्लाह का अज़ाब आता है। और कभी लेकर आजमाता है, कम करके आजमाता है, छीन कर आजमाता है। बंदा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता है, तकदीर पर ईमान रखता है कि नहीं रखता है, अल्लाह पर ईमान रखता है कि नहीं रखता है, कहां तक टिका रहता है, कहां तक अल्लाह को मानता है। तो कभी अल्लाह ताला देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दौलत दे रहा है, आपको माल दे रहा है, आपको पैसा दे रहा है, तो उससे खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि गौर करना चाहिए कि कहीं मेरे अमल की कोताही की वजह से अल्लाह का अजाब तो नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ज्यादा माल दे रहा है। इस बात पर भी बंदे को बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। नेक्स्ट, तकवे का सवाब जन्नत है। अल्लाह ताला यहां पर बार बार कह रहा है, दो बार कहा, तकवा जन्नत, तकवा जन्नत। यानी अगर बंदे के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है, उसका खौफ है, अल्लाह ताला को वो एक मानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर ईमान और तवक्कुल रखता है, तो इस तकवे का बदला जन्नत, तकवे का बदला जन्नत, तकवे का बदला कामयाबी, तकवे का बदला अल्लाह की मोहब्बत। तकवे के बहुत सारे बदले अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। तो अगर बंदा सही मायनों में तकवा इख्तियार कर ले तो उसका ये तकवा उसे इंशाअल्लाह जन्नत दिलाएगा। रब्बुल आलमीन की तरफ से उसे जन्नत का बदला दिया जाएगा। नेक्स्ट,
अबरार कौन होते हैं? अबरार, अल्लाह ताला कहना ना खैरुल लिल अबरार, नेक लोगों के लिए अच्छा है। तो अबरार मतलब होता है अमल करने वाला। आसान लफ्जों में अबरार का मतलब अमल करने वाला, दीन पर अमल करने वाला, शरीयत पर अमल करने वाला, हलाल हराम के अहकामात को समझने वाला। अबरार मीन्स अमल करने वाला। और अगर आप अबरार हैं तो आप जन्नती हैं। अगर आप अबरार हैं तो अल्लाह की रज़ा आपको हासिल है। अगर आप अबरार हैं तो अल्लाह ताला आपसे खुश है। अबरार मतलब अमल करने वाला। नेक्स्ट, दुनिया को कभी भी आखिरत पर आगे ना बढ़ाएं। दुनिया कमाओ, मेहनत करो, कारोबार करो, पैसा कमाओ, स्टेटस बनाओ, रुतबा बनाओ, सब करो, पर कभी भी दुनिया को आखिरत के ऊपर लेकर मत जाओ। आखिरत आखिरत है, दुनिया दुनिया है। दुनिया फानी है, ख़त्म होने वाली है, खात्मे की तरफ है। कितना कमा लो, कितना स्टेटस रुतबा बना लो, कब्र में आपको अकेले जाना है। कपड़े तक निकाल लिए जाएंगे, कफन में डाला जाएगा, आपकी दौलत, शोहरत, पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब यहीं छूट जाना है। लेकिन जब आखिरत में जाओगे ना, वहां सब साथ रहने वाला है। जितना आपने कमाया, जो नेकियां आपने कमाई, कभी खत्म ना होगी, जन्नत कभी खत्म ना होगी, नेमतें कभी खत्म ना होगी। तो इसलिए कभी भी दुनिया को आखिरत पे तरजीह मत दो। जब बात आ जाए दुनिया और आखिरत की, तो वो अमल करो जिससे आखिरत बेहतर बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे आपको आखिरत का बेपनाह अजर व सवाब अता करेगा। नेक्स्ट, दीन का इल्म हासिल करने का मकसद कभी भी दुनिया नहीं होना चाहिए। दीन आपने सीखा, आप आलिम बने, आप हाफिज बने, आप कारी बने, आप वाइज बने, दीन के इल्म का मकसद दुनिया नहीं होना चाहिए। इससे दुनिया कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, इससे खूब स्टेटस हासिल करूंगा, ये मकसद दीन के इल्म का नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहा है ना कि अहले किताब में से कुछ लोग थे जो ईमान रखते थे, पर अक्सर की हालत क्या थी कि वो अल्लाह की आयतों को बेचा करते थे, दीन का सौदा किया करते थे, दीन को बेचने का काम करते थे, किताबों में तब्दीली करते थे, अपने अहकामात में तब्दीली करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बता रहा है कि दीन का मकसद दुनिया मत रखो। यहाँ पर एक नुक्ता याद रखें, अब कोई आलिम है, उसके अलावा कोई जरिया माश नहीं है, नौकरी कर रहा है, बात अलग है, पर उसे मकसद ही बना ले, उसी पर डिपेंड हो जाए, सिर्फ पैसा 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 दीन के नाम पर कमाता रहे, ये चीज़ शरीयत ने गलत करार दी है। कि दीन का मकसद सिर्फ दुनिया मत बनाओ, बल्कि मकसद आखिरत बनाओ, जन्नत बनाओ, ताकि रब्बुल आलमीन तुमसे राजी हो जाए और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। नेक्स्ट, अल्लाह से डरने वाला कभी दीन का सौदा नहीं करता। कितनी मुश्किल आ जाए, कितनी तकलीफ आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, दुश्मन आ जाए, ताकतें आ जाए, कुव्वतें आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहां तक कि मौत पर बात आ जाए, जो अल्लाह से डरता है ना, वो कभी दीन का सौदा नहीं करेगा। हमारे यहां तो दीन बेचते हैं हम लोग जरा जरा से में, शादियों में दीन बेच रहे हैं, कारोबार में दीन बेच रहे हैं, रिश्तों में दीन बेच रहे हैं, पता है हलाल क्या हराम क्या, पर दीन का सौदा कर देते हैं। जहां मन हुआ दीन का सौदा कर देते हैं, कहीं अपनी खुशी के लिए सौदा कर देते हैं, कहीं दुनिया के फायदे के लिए सौदा कर देते हैं, हर काम हराम कर रहे हैं, सारी जिंदगी हराम गुजार रहे हैं। पर अल्लाह से डरने वाला कभी दीन का सौदा नहीं करता। उसके लिए दीन ज़्यादा कीमती होता है, दीन पर रुकना कीमती होता है, अल्लाह के आगे रुकना कीमती होता है। उससे ज़्यादा कीमती शय बंदा मोमिन की ज़िंदगी में कुछ नहीं होती कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। तो अल्लाह ताला से डरने वाला कभी भी अपने दीन का सौदा नहीं करता। नेक्स्ट, दुनिया और आखिरत में कामयाबी सब्र से मिलती है। सब्र बहुत लाजमी चीज़ है इस्लाम में, और इंसान बड़ा बेसब्रा पैदा किया गया है, सब्र नहीं होता। सब्र करो, फैसले के आने में सब्र करो, नतीजे के मिलने में सब्र करो, इनाम के आने में सब्र करो, दुनिया की तरक्की में सब्र करो, परेशानियों पर सब्र करो, तकलीफ़ों पर सब्र करो, बीमारियों पर सब्र करो। बंदा मोमिन की ज़िंदगी ही सब्र है, सरापा सब्र। लेकिन जब बंदा सब्र करता है ना, अल्लाह दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है, दुनिया की तरक्की भी देता है, आखिरत की भी तरक्की देता है, पर उसके लिए सब्र करना पड़ता है। जितना अल्लाह दे उसमें रुक जाओ, जैसा अल्लाह रखे उसमें रहो, खुश रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को सब्र की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत की तरक्की अता करता है। पर शर्त यह है कि वो सब्र तो करे, वो रुके तो सही, वो भरोसा तो करे। यहाँ पर तो ज़रा सा कारोबार ना चला, बेसब्रे बन के हराम करने लग जाते हैं, 2 नंबर के धंधे करने लग जाते हैं, इंटरेस्ट का कारोबार करने लग जाते हैं, दुकान मकान पर कब्जे करने लग जाते हैं। यहाँ शरीयत कह रही है सब्र करो, सब्र करो, जमे रहो, डटे रहो। सब्र करने वालों की मदद अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में करता है। नेक्स्ट, इत्तेहाद से दुनिया जीती जा सकती है।
यहाँ क्या कह रहा है अल्लाह ताला, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र करो, जम कर रहो, मिल कर रहो। साबिरू राबितू दोनों जमा के सीखे, दोनों में वाव और अली लगाए ना, उसका मतलब एक साथ सब्र करो, एक साथ जम कर रहो, एक साथ मिल कर रहो। इससे पता चलता है कि इत्तेहाद से आप सारी दुनिया जीत सकते। सहाबा के जीतने की वजह क्या थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीतने की वजह क्या थी? गज़वात में कामयाबी की वजह क्या थी? सहाबा इकराम का बाहमी इत्तेहाद, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की ताकत बनना। इस इत्तेहाद ने सहाबा इकराम को सारी दुनिया पर राज करने वाला, ताकतवर और कुव्वत वाला बनाया, क्योंकि सहाबा इकराम मुत्तहिद थे। और हमें टूटे हुए जमातों के नाम पर, फ़िरक़ों के नाम पर, ज़िम्मेदारों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर जगह जगह टुकड़ों में अपने आप को बांट लिया, तो क्या आप दुनिया जीत पाओगे? आप आखिरत जीत पाओगे? दुनिया और आखिरत अगर जीतना चाहते हो तो उसके लिए आपको जमना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, गलतियों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप भी बर्बाद, सामने वाले को भी आप बर्बाद कर देंगे। तो इत्तेहाद से दुनिया जीती जा सकती है। ये तदब्बुर के कुछ पॉइंट थे। आखिरी चीज़ है अमल। आज की आयतों पर हम क्या अमल करें? नंबर 1, अल्लाह से खूब दुआ मांगे, जो मांगना है मांगो, अल्लाह के पास कोई लिमिट ही नहीं है, जो मांगना मांगो, खूब दुआ मांगो, खूब पुकारो, खूब अल्लाह ताला से दुआएं करो। रब्बुल आलमीन दुआ करने वाले बंदों को पसंद फरमाता है। नेक्स्ट अमल नेक करते रहो, उसके नतीजे के बारे में मत सोचो। आपका काम है अमल करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, सच बोलना, अमानतदार रहना, जो भी चीज़ें हैं नेक काम करते चले जाओ, बस नेकी के काम करो। आप ये मत सोचो क्या होगा, नतीजा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब अल्लाह देखने वाला है। आप नहीं हो, आप जिम्मेदार नहीं हो, आप किसी के ऊपर जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजे गए हो। नेक्स्ट, इत्तेहाद को अपनी ताकत बनाओ, मिलकर रहने को अपनी ताकत बनाओ, इत्तेहाद को अपनी ज़िंदगी बनाओ। मुत्तहिद होना, इत्तेहाद के लिए कोशिशें करना, झगड़े ख़त्म करवाना, इस्लाह का काम करना, ये बंदा मोमिन की ज़िंदगी होना चाहिए कि जितनी अल्लाह ने आपको ताकत और तौफीक दी है, आप लोगों को मिलाने का काम करें, आप लोगों को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं, इख्तिलाफ का काम नहीं, झगड़े का काम नहीं, मिलकर रहें। क्योंकि इत्तेहाद जितना ज़्यादा मजबूत होता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उतनी ज़्यादा मदद आती है। तो आज की आयतें चूँकि बहुत ज़्यादा बातें इसमें नहीं थी, फिर भी जो बातें मैं आपके सामने रख सकता था मैंने रखा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में ये दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन तो गफूर है, तो गफ़ार, तो रहमान है, तो रहीम, तो अव्वल है, तो आखिर है, तो ज़ाहिर है, तो बातिन है। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो बातें हमने यहाँ पर कही और सुनी, इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, दीन पर जमने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, इत्तिहाद को पैदा करने, उसे मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।